Hey, ninth graders, welcome back to the class. How are you all? We have discussed about mixtures, types of mixtures, और उसमें हमने homogeneous mixture, heterogeneous mixture पढ़ा था. अगर आपने वो नहीं देखा या वो वाला जो क्लास है वो अटेंड नहीं किया तो I will be giving the link in the comment box. Okay, so do check out that one and have an insight or have an understanding about types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Then come back to this class. Okay. Okay, so आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं solutions के बारे में और types of solutions. So here is types of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. Solute और solvent किस state में है mixture के अंदर, तो उस हिसाब से उस basis पे हम types of solution करेंगे. ठीक है? Let's understand. Say our solvent is solid. Okay? Now we dissolve solid into solid, solid into solid. So this type of solution is called as alloys. It's a homogeneous mixture of two or more than two metals, okay, or one metal and one non-metal. That is alloys. Clear? So we can have some examples of alloys. Says, for example, stainless steel. One another example is brass, bronze, alnico, solder. So these are some of the examples. Okay, you just need to remember only names of these examples right now. In the higher grades, you will be understanding their composition along with the percentage of different metals or different non-metals found in them. Okay. For your information, I can tell you that stainless steel is made up of iron plus chromium. Cr stands for chromium, nickel, and a very little amount of carbon added to it. Okay. Then there is one more example, that is brass. Brass is an alloy of copper and zinc. Then there is bronze. Bronze is an alloy of copper and tin. Cu stands for copper, Sn stands for tin. Okay. Alnico, it indicates that it is aluminium, nickel, and cobalt. Okay, these are the elements or metals they form alnico. Solder, you can say it's lead and tin. Pb stands for lead and Sn stands for tin. Okay, these are some of the alloys of daily use. Now moving to second type of solution where we dissolve a liquid into solid. Liquid into solid, a good example is amalgam. Amalgam is mixture or homogeneous mixture of a metal and mercury. Particularly one should be mercury and another can be any other metal. Okay, so it is mixture of mercury. Hg is symbol for mercury and any other metal. Okay, that's known by a name called amalgam. Now if we dissolve gas into solid, okay, so there is an example where a solid surface of platinum metal is absorbing gas यानी और हाइड्रोजन गैस we can say. ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनम सरफेस में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं तो उनके अंदर चली जाती है, तो that becomes a homogeneous mixture. Any type of mixture where we can say where there is a solid solvent, that is called as solid solution. ये सब solid solutions है. ठीक है, इनमें solvent solid है तो ये solid solution बनाएंगे. Clear? So I hope you have got most of the examples from here. अगर आपको और भी कोई एग्जाम्पल दिखता है बुक से, नेट से, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे. ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन अलग से लिखोगे, लिक्विड सोल्यूशन अलग से और गैसियस सोल्यूशन अलग से. ठीक है, नाउ दिस वाज अबाउट सॉलिड सोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लिक्विड सोल्यूशन. यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, सॉल्वेंट चेंज किया. सॉल्वेंट अभी लिक्विड है. ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो अगर हम लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व करें लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा, जैसे अल्कोहल इन वाटर. ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, तो ये एक होमोजेनियस लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा. और हनी इन वाटर, दैट्स आल्सो बिकमिंग होमोजेनियस सोल्यूशन. अभी हम सॉल्वेंट चेंज करके एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे. सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के आपको बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे. सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट इन वाटर. ठीक है, और वन मोर इंपॉर्टेंट इज टिंचर ऑफ आयोडीन. टिंचर ऑफ आयोडीन इज elemental iodine, solid iodine crystals dissolved in ethyl alcohol और ethanol प्लस वाटर. इथेनॉल और वाटर का एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना. इस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड आयोडीन को डिसॉल्व कर दिया गया. इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन. इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. ठीक है, सो ये इन्फेक्शन के खिलाफ यूज होता है. कट लगता है, कोई स्क्रैच होता है बॉडी पे कहीं पे किसी के, तो वहां पे ये आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन यूज होता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ अगर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें, ठीक है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया हो, जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, इससे एक्वेटिक लाइफ चलती है, एक्वेटिक लाइफ चलती है इसी से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स इसी को पानी से खींच लेते हैं और यूज करते हैं। नाउ सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, दैट इज सोडा वाटर, क्लियर। और कोल्ड ड्रिंक भी यूज बोल सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कार्बोनेटेड होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो फ्रिज में से एक सादा पानी भी उसको भी कोल्ड ड्रिंक बोलेंगे, लेकिन ये कार्बोनेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोनेटेड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होना चाहिए, देन इट विल बिकम अ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सारे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड फेज में है, इन सबको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। अब एक और टाइप है हमारे पास, दैट इज गैसेस सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस। अगर हम एक सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व करें, एक सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व करें, ऐसा क्या है जो ये सॉल्यूशन बना सकता है? एक है दैट इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये सॉलिड जो है ना इस गैस के साथ रिएक्ट ना कर जाए, बस फिजिकली कंबाइन हो जाए, वो चाहिए हमको गैस से सॉल्यूशन बनाने के लिए। कैम्फर नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाता है, तो ये एक गैस से सॉल्यूशन बनता है जिसमें सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है। दूसरा, सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है। तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के अंदर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, और ये जाते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। सो एटमॉस्फेयर बिकम्स सॉल्वेंट इन दिस केस एंड स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम सोल्यूट, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। So humidity is water content in the atmosphere. Water content in the atmosphere. So water droplets in the atmosphere is called as humidity. तो ये humidity जो है ये एक solution है basically, gaseous solution of liquid into gas. Now gas in gas तो easy है, that's air. Air के अंदर बहुत सारे gases है, nitrogen है, oxygen है, ठीक है, और बाकी trace gases है, carbon dioxide and some other gases, helium and all that. Okay. तो ये एक गैसेस मिक्सचर है जिसमें हमको ये नहीं पता चलता कि कौन सा गैस किसके अंदर मिक्स हुआ है, या ऐसा कि हम इसको अलग डिफरेंट गैसेस को अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है गैस इन गैस वाला, ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सब गैसेस जितने भी एटमॉस्फेयर में है ये नॉन रिएक्टिंग है, ये रिएक्ट नहीं हो रहे हैं आपस में, ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आपस में फिजिकली मिक्स हुए हैं, इससे ये एक गैसेस मिक्सचर बना है, गैसेस सॉल्यूशन बना है। अगर ये रिएक्ट हो जाए ये मिक्सचर नहीं रहेगा, अगर गैसेस आपस में रिएक्ट हो जाए ये मिक्सचर नहीं रहेगा, इट विल बिकम अ कंपाउंड इन दैट केस। So you need to keep in mind that whenever you define a mixture, you need to define that the constituent of the mixture must not be reacting. Okay, वो रिएक्शन ना कर जाए आपस में, फिर मिक्सचर नहीं रहेगा। ओके देन, सो और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट हेटेरोजेनियस मिक्सचर टाइप्स, उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा suspension and collide. Okay, so that will be the topic of next class. We will be meeting in the next class. Till then, bye bye, take care.